أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. کیسے ہیں میرے پیارے طلباء؟ خیریت سے ہیں سب؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ سب خیریت سے ہیں الحمدللہ. گھر والے سب، بھائی بہن اور آپ کے اڑوس پڑوس والے، دوست احباب، آپ لوگ دوست احباب سے کانٹیکٹ کرتے ہیں نا، فون وغیرہ کر کے بات سب کرتے ہیں نا؟ اسی طرح اساتذہ سے سب ماشاءاللہ سب کیا کرنا ہے، اگر آپ لوگ آپس میں نہیں مل سکتے ہیں تو بھی کیا کرنا، فون کے ذریعے کیا کرنا، آپ لوگ ہر دن بات کرنا ہے. امید ہے کہ آپ لوگ سب لوگ کرتے ہوں گے ماشاءاللہ، ویڈیو کال کے ذریعے یعنی تو سادہ کال کے ذریعے آپ لوگ سب بات کرتے ہوں گے. انشاءاللہ کچھ دن بعد یعنی ایگزام ابھی بہت قریب ہے، عن قریب ہے نا، اس ایگزام کے بعد انشاءاللہ ہم سب آپ لوگ سب کیا کریں گے، ایک ساتھ آمنے سامنے استادوں کے سامنے کیا کریں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ نصیب عطا فرمائے. یہ اس کورونا سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ابھی جہاں تک ایگزام کے لیے جہاں تک پڑھنا تھا ہم لوگ کیا کیے، وہ سلیبس کو پورا کیا مکمل سے پڑھ چکے ہیں، یاد بھی کیے ہیں، مشق بھی کیے ہیں. جو عمل یعنی تدریبات جو ہے وہ سب کیا کریں، لکھ کر آپ لوگ سب کیا کیے، آپ اپنے استاد کو سب بھیجیں ہیں. مجھ کو بھی بہت ایسے سب آیا ہے، تو الحمدللہ سب ماشاءاللہ بہت اچھے سے لکھے ہیں. تو آپ لوگ ابھی کیا کرنا ہے، آج زیادہ کچھ بات کرنے کا نہیں ہے، کیونکہ آج سبق کچھ پڑھنا نہیں ہے. جس سبق ہم لوگ آج تک پڑھے یعنی چھٹے سبق سے لے کر 10ویں سبق تک اس ایگزام کے لیے جو ہم لوگ پڑھے تھے اس کو کیا کریں گے، ایک مرتبہ دہرائیں گے. ہم لوگ جو پڑھے تھے اس کو نہیں بھولنا ہے نا، تو اسی لیے یاد دلانے کے لیے، اس کو یاد رکھنے کے لیے اپنی زندگی میں بھی عمل لانا ہے، اور آپ کو ایگزام میں بھی آسان ہونا ہے نا. ایگزام میں سب لوگ اچھے مارکس کے ساتھ کیا کامیاب ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے سے اچھا مارکس لے کر پاس ہونے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور جو کامیاب ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی شامل کریں، آمین. تو امید ہے کہ آپ لوگ سب ادب کے ساتھ اس آخری پیریڈ کو، اس آخری لمحے کو بہت خوشی کے ساتھ، ہے نا، خوشی ہے نا، اس کے بعد اگر چھٹی مل گئی تو خوشی ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ لوگ سب کیا کریں گے، مدرسے میں آئیں گے انشاءاللہ وہاں سے ہم لوگوں کی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تو ہم لوگ آج تک جو پڑھیں اس کو کیا کریں گے، ایک مرتبہ اپنے سبق کے نام کے ساتھ ہم لوگ اس میں کیا کیا چرچا کیے تھے، کیا کیا پڑھے تھے، اس کو ایک مرتبہ اسے ہی سرسری نظر اوپر سے ہم لوگ کیا کریں گے، پڑھ کے دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، سب لوگ ریڈی ہیں نا؟ ماشاءاللہ. تو ہم لوگ اس ایگزام کے لیے ہم لوگ ٹوٹل کتنے سبق پڑھے ہیں مکمل؟ 5 سبق پڑھے ہیں. کتنا ہے؟ 5 سبق پڑھے ہیں. کہاں سے کہاں تک؟ 6 7 8 9 10. ٹوٹل کتنا؟
5 सबक पढ़े हैं 6 से लेकर 10 तक। तो उसमें छठवीं जो सबक है वो क्या है, 6th जो सबक है वो क्या है, वज़ू करके पढ़ें। तो उसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे, अनवर ने आकर क्या किया था, वज़ू किया था हाउस के पास, उसमें कुछ खामियां थी तो उसको क्या किया उस्ताद ने सही करके दिए, है ना। और उसमें जो सुन्नतें हैं वो सब उस्ताद ने बता के दिया क्या क्या है। शुरू में औज़ु बिस्मिल्लाह पढ़ना, शहादत कलिमा जो शहादत है 2 शहादतें ने उसको पढ़ना, और उसके साथ एक छोटा ज़िक्र भी याद दिलाए थे, क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल माअ तहूरा, ये सब पढ़े थे, है ना। उसके बाद उसमें जो सुन्नतें, जो मुकम्मल कामिल जो वज़ू करते हैं वो सब के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। और चेहरा धोना, मतलब चेहरा कहाँ से कहाँ तक, वो सब पूरा हम लोग क्या किए थे उसमें पढ़े थे, है ना। तो उसके बाद हम लोग वज़ू के बाद एक दुआ है, बहुत लंबी एक दुआ है, क्या है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, है ना। वैसे शुरू होने वाले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन व जअलनी मिन इबादिकस सालिहीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये सब आप लोगों को याद है, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ अभी आप लोगों को याद दिला रहा हूँ एग्ज़ाम में आसान होने के लिए। ये सब क्या किया जाएगा, एग्ज़ाम में सब पूछा जाएगा, पूरा करने के लिए बताएंगे, है ना। तो उसमें सब आप लोग क्या करना है, उसको हरकत वो सब देख के, अल्फाज को एक देख कर क्या करना, आप लोग पढ़ना है, लिखने के लिए भी सीखना है, ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तौफीक दे। तो उसके बाद हम लोग आएंगे 7वें सबक में। 7वें सबक में क्या हेडिंग का नाम क्या है, सबक का नाम वज़ू वाजिब है। क्या है, वज़ू वाजिब है। तो उसमें हम लोग 5 बातें पढ़े थे। उसमें किताब में कितना 4 बातें दी हैं, अगर उसमें हम लोग पढ़े कितना 5 है। कैसे हो, 4 बातें ये है कि नमाज के अलावा, यानी उसमें क्या हो, एक बात है नमाज के लिए क्या रहना है, वज़ू रहना वाजिब है। तो उसी तरह नमाज के अलावा दूसरे सुजूद जो हम करते हैं उसके लिए भी क्या रहना है, वज़ू वाजिब है ना। नमाज हो गया, और नमाज के अलावा जो दूसरे जो सुजूद है, यानी सज्दे तिलावा, सज्दे शुक्र, ऐसे जो सजदे हैं, तो उसके लिए भी क्या करना है, वज़ू करना वाजिब है। तो वहाँ दूसरी बात हुई, किताब में पहली बात है, हम लोग समझे 2 बातें, ठीक है। और उसके बाद दूसरी बात क्या है, जुमा का खुतबा पढ़ना, यानी जब इमाम खतीब जब खुतबा पढ़ने के लिए जब मिंबर पर खड़े होते तब क्या होना है, वज़ू रहना वाजिब है। और वज़ू नहीं है तो नमाज खुतबा सही नहीं हुआ तो उस दिन की जुमा भी सही नहीं होगी, है ना। हाँ, तो क्योंकि खुतबा क्या है, नमाज के कायम मकाम में है, नमाज की जगह पर है। क्योंकि ज़ोहर के 4 रकात है, तो हम लोग जुमा के दिन कितना 2 रकात पढ़ते हैं, और 2 रकात क्या है, वो खुतबा जो पढ़ते हैं उसके मकाम पर है ना। हाँ, तो इंशाअल्लाह ये सब के बारे में आप लोग क्या करेंगे, तफसीलन बड़े क्लास में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको मुकम्मल इल्म हासिल करने के लिए अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। जो हम लोग सीखे हैं उस पर अमल भी करना है, उसके लिए भी अल्लाह ताला तौफीक दे, आमीन। और तीसरी बात क्या है, तवाफ़ काबा, यानी जब हम लोग हज या उम्रा करने के लिए जब जाएंगे, हाँ, तो उस वक्त काबा के तरफ इर्द गिर्द हम लोग क्या करेंगे, घूमेंगे, 7 मरतबा घूमेंगे। तो वो चक्कर लगाना, वो तवाफ़ करने के लिए वज़ू वाजिब है, ये भी पढ़े थे। और उसके बाद चौथी बात है मुसाफ़ को छूना और उठाना। मुसाफ़ को छूना या उठाना, ये किसके लिए छूना और उठाना किसके लिए वाजिब है, वो भी पढ़े थे। जो बालिग है तो उनके लिए वाजिब होना ज़रूरी है, और तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे लोग, नन्हे मुन्ने बच्चे लोगों के लिए किताब, और जो पढ़ाई करते तो उनके लिए उठाना जायज़ है ना। ऐसा पढ़े थे ना हम लोग। कोई एक सवाल किया था उसमें, अनवर से क्या सवाल किया था, हम लोग किताब का बग़ैर उज़ूर का किताब ले सकते हैं क्या, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, ऐसे सवाल किया गया था। उसके लिए क्या जवाब दिए थे, हाँ, आप लोगों के लिए जो तमीज़ वाले हैं ऐसे बच्चों को क्या कर सकते हैं, किताब को, मुसाफ़ को उठा सकते हैं पढ़ने के हिसाब से। अगर कोई किताब लेके जाए, मुसाफ़ को लेके उठाया रहा है तो उसको जायज़ है ना, बालिग होने से पहले हो तो भी। तो ये सब हम लोग क्या किए थे, उसमें चर्चा किए थे। वज़ू वाजिब है, वज़ू वाजिब है उस
सबक में हम लोग पूरा चर्चा किए थे, 5 बातें हैं, ठीक है, वो भी याद रखना है। उसमें भी सवाल किया जाएगा कितने बातें हैं, है ना। और वज़ू के बग़ैर किसको मुसहफ़ को उठा सकता है, छू सकता है? हाँ, जो बातमीज़ वाला है उसको क्या कर सकता है, वज़ू के बग़ैर मुसहफ़ को छू सकता है। और 8वें सबक क्या है, क्या वज़ू टूट गया, यानी वज़ू करने के बाद हम लोगों को ध्यान से देखना है कि हम लोग कुछ काम करने से क्या होता है, वज़ू टूट जाता है, कुछ होने से क्या होता है, वज़ू टूट जाता है। वो इसे 4 बातें हम लोग क्या किए, पढ़े हैं, सीखे हैं। क्या क्या है वो? एक है पेशाब और पाखाना निकलने के जगह से कुछ चीज़ क्या करना कुछ चीज़ निकलने से क्या होगा, वज़ू टूट जाएगा। क्या क्या है वो? हवा, पाखाना, कीड़ा वगैरह निकलने से क्या होगा, वज़ू टूट जाएगा, एक। दूसरा क्या है, नींद, एकदम गहरी नींद है और पागलपन, मतलब पागल लोगों को देखते हैं ना हम लोग, वैसे आदमी लोगों का और बेहोश, कुछ चीज़ खाने की वजह से वो बेहोश हो गया, यानी तो ऐसे कुछ चक्कर आने से भी क्या होगा, वज़ू टूट जाएगा। तो ये सबसे क्या होगा, वज़ू टूट जाएगा, है ना। तीसरे क्या है, हथेली, अपने हाथ की हथेलियों से क्या करना, अपने शर्मगाह को छूना या दूसरे के शर्मगाह को छूने से क्या होता है, वज़ू टूट जाता है। तब उसमें बताया कि हथेली बोलो तो क्या है, हाँ, हाथ के जो ये ज़ाहिरी हिस्सा है वो हथेली है, इसके बीच वाला और नाखून के जो ऊपर वाला है वो हिस्सा को क्या हथेली में शामिल नहीं होगा, तो वहाँ छूने से क्या नहीं होगा, वज़ू नहीं टूटेगा, है ना। तो चौथी बात क्या है, अजनबी बड़े मर्द और औरत के जो चमड़े हैं आपस में मिलने से क्या होगा, आपस में टच होने से, मिलने से क्या होगा, वज़ू टूट जाएगा। तो ये सब किस में पढ़े थे हम लोग, सबक नंबर 8 में पढ़े थे, माशाअल्लाह। तो उसके बाद हम लोग पढ़े सबक नंबर 9। क्या है, ये सब पूरा मुकम्मल होने के बाद हम लोग वज़ू कैसा करते हैं, वज़ू में क्या क्या पढ़ना है, वो सब पढ़े। उसके बाद वज़ू कहाँ कहाँ वाजिब है वो भी पढ़े, है ना। फिर उसके बाद हम लोग गौर किए कि वज़ू टूट गया कि नहीं, वो सब देखने के बाद अभी क्या करने जा रहे हैं, हम लोग नमाज शुरू करने के लिए जा रहे हैं। वो है सबक नंबर 9। क्या है, नमाज शुरू करने से पहले। तो इसमें हम लोग पूरा नमाज के जो शराइत हैं, कितना है नमाज के शराइत 5 है ना। नमाज के शराइत कितने हैं, 5 है। तो उसमें तहारत यानी हदस से असगर से भी और हदस से अकबर से भी पाक होना, और नजासत से पाक होना, जो उसके बाद सतर पोशी करना यानी सतर छुपाना, बदन का जो सतर है वो पूरा क्या करना, छुपाना, और वक्त का यकीन तौर पर दाखिल होना, मतलब वक्त हुआ कि उसको भी क्या करना, देखना, और उसके बाद क्या, क़िबला की तरफ मुँह करना। ये 5 जो शराइत है नमाज के, ये सब हम लोग गौर करते हुए नमाज पढ़ने के लिए क्या हुए, खड़े हो गए हैं, है ना। तो ये बात हम लोग मुकम्मल से किस में पढ़े थे, सबक नंबर 9 में पढ़े थे। ये सब क्या है, नमाज के शराइत हैं, ठीक है। उसके बाद आखिरी सबक हम लोग जो पढ़े थे पिछले 3-4 दिनों में, क्या है वो, याद है किसी को? हाँ, जो कि नया सबक है नमाज के लिए, जो वक्त होने के लिए हम लोग जो सीख सकते हैं, वक्त होने के लिए हम लोग पहचान सकते हैं, वैसे सबक है। क्या है वो, अज़ान और इक़ामत, है ना। अज़ान देने से हम लोग को क्या पता चलता है, हाँ, नमाज के वक्त शुरू हो गया है ना, वो पता चलता है। तो ये है 10वीं सबक, क्या, अज़ान और इक़ामत, और उसमें कुछ 6 बातें बताए थे। तो इसमें हम लोग बहुत मरतबा दोहराए, याद भी किए हैं, और प्रैक्टिकल हम लोग क्या किए हैं, हाँ, अज़ान को सुने हैं, सादे अज़ान है वो भी सुने हैं, और उसके बाद फ़जर के अज़ान के साथ मक्के के जो अज़ान है हम लोग वो भी क्या किए, सुने हैं। तो उसको आप लोग क्या करना, दोबारा सुनना, उसको क्या करना, मश्क करते हुए आप लोग भी अज़ान सब देने के लिए कोशिश करना, इंशाल्लाह अल्लाह ताला तौफीक दे। तो उसमें 6 बातें क्या क्या है, याद है किसी को? हाँ, एक क्या है, मुअज़्ज़िन जिस तरह अज़ान और इक़ामत देते हैं उसी तरह वो सुनने वालों को क्या करना, जवाब देना है ना। दूसरी बात क्या है, हय्या अला जब सुनेंगे उस वक्त क्या करना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ना। और उसके बाद फ़जर के अज़ान में एक ज़िक्र ज़्यादा है, 2 मरतबा पढ़ेंगे उसको, क्या है वो, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। उसमें क्या जवाब देना है सुनने वाला, सदक़ता व बरिरता, है ना। और चौथी बात क्या है, अज़ान और इक़ामत के पहले और बाद में क्या करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पढ़ना है। क्या है वो, छोटी दरूद है आप लोगों की किताब में, क्या है वो, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद, है ना। तो उसके बाद 5वीं बात क्या है, हाँ,
اقامت میں ایک ذکر بھی زیادہ کرتے ہیں، 2 مرتبہ پڑھتے ہیں وہ ذکر کو، کیا ہے وہ؟ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. تو اس کے لیے سننے والا کیا جواب دینا ہے؟ اقام اللہ ادامہ وجعلنی من صالح اہلہا، یہ جواب دینا ہے. اور آخری بات اذان اور اقامت کے 6 باتوں میں سے آخری بات کیا ہے؟ اذان اور اقامت کے بعد دعا پڑھنا سنت ہے. کون سی دعا ہے وہ؟ آپ لوگ سب یاد کیے ہیں، میرے ساتھ پڑھیے ایک مرتبہ. اللہم رب ہادی دعوت التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. ماشاء اللہ، آپ لوگوں سب کو یاد ہے نا؟ سب اچھے بچے ہیں. تو ہم لوگ کیا کیے پورا مکمل سے، یعنی شروع سے لے کر آخر تک ہم لوگ آج تک 2 پڑھیں تو وہ پورا مکمل ایک مرتبہ دہرائے ہیں. تو اس کو آپ لوگ کیا کرنا ہے، پورا دھیان میں رکھنا ہے. انشاءاللہ ایگزام آنے والا ہے، آپ لوگ سب اچھے سے محنت کر کے سب لوگ کامیاب ہونا ہے اچھے مارک کے ساتھ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اللہ تعالیٰ ایگزام میں پاس ہونے کے لیے توفیق عطا فرمائے. اور اس پر یہاں ہم لوگ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ ایگزام کے بعد کبھی کیا ہو سکتا ہے، آف لائن پڑھائی ہو سکتی ہے انشاءاللہ. اس وقت آپ لوگ اپنے اساتذہ سے ملیں گے انشاءاللہ، دوست احباب سے ملیں گے، مل جل کر کیا کریں گے، پڑھیں گے، کھیلیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کے لیے توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے. اور خاص اپنے دعاؤں میں اپنے ماں باپ کو، اساتذوں کو آپ لوگ کیا کرنا ہے، دعا کرنا ہے. اور جو یہ ویڈیو کے ذریعے پڑھانے کے لیے جو ہم لوگوں کو توفیق ملا، اس کے لیے جو محنت کی ہیں، بہت لوگ اس کے پیچھے کیا کیے ہیں، بہت مشق کر کے اس کو کیا کیا، بہت محنت کی ہیں. تو اس کے لیے سے آپ لوگ کیا کرنا ہے، دعا کرنا ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم لوگ ابھی تک علم حاصل کیے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور علم نافع بنا دے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم.